بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ آج ہم جس قرآن شریف کو پڑھتے ہیں وہ کیسے ہماری تقدیر کی سب سے اہم کتاب بن کر ہمارے پاس آئی؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ توریت، زبور اور انجیل جیسی پاک کتابیں جو پوری طرح سے دنیا سے غائب ہو گئیں اور آخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کیوں نازل فرمایا؟ آج کی اس دلچسپ داستان میں ہم آپ کو بتائیں گے اس رہسمئی گھٹناؤں کی پیچھے کی اصلی بجائے ان انکہی غمگین حقیقتوں کو جنہیں کوئی بھی دنیا کے اتہاس کی کتابیں آپ کو نہیں بتاتی۔ چلیے جانتے ہیں اس دور کی وہ باتیں جب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر پر کتابیں نازل کی، مگر انسانیت نے انہیں کیسے بدل ڈالا، اور پھر کیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پاک کلام الہی کو بگڑنے سے بچا کر ہمیں ایک سچا راستہ دکھایا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اس رہس کو تو ہماری آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کو بہت کچھ جانکاری دے گی۔ یہ ویڈیو آپ کے آنکھوں پہ پڑے ہوئے پردے کو اٹھا دے گی۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بن گئے تو مسلمانوں کے بیچ ایک گمبھیر بحث نے جنم لیا، ایسا وواد جو پہلی بار پورے امت اسلام کو پھوٹنے کے کگار پر لے آیا، کیونکہ یہ بحث کسی معمولی مسئلے پر نہیں بلکہ کلام الہی یعنی اللہ کے انمول کلام پر چل رہی تھی۔ اس زمانے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق مسلمان قرآن شریف کو عربی کی 7 پرمکھ لہجوں میں تلاوت کیا کرتے تھے، مگر جیسے جیسے دینی روشنی پورے جہان انسانیت میں پھیلی، دور دور سے لوگ اس نیک راستے کی ہدایت دینے کے لیے آنے لگے۔ پہلی بار آنے والے مسلمان حضرت صحابہ کرام سے سیدھے طور پر قرآن کی تلاوت کی تعلیم حاصل کرنے لگے، مگر اب ایک اہم مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ یہ نئے مسلمان حضرت صحابہ کرام سے الگ الگ لہجوں میں قرآن پڑھنے لگے تھے۔ پہلے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن دھیرے دھیرے کچھ لوگ اپنے لہجے کو اصلی اور دوسروں کے لہجوں کو غلط سمجھنے لگے۔ حالات اتنے گمبھیر ہو گئے کہ مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے۔ اسی طرح یہ بحثیں اور بھی گہراتی گئیں اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چرم پر پہنچ گئیں۔ اس وقت مسلمانوں نے انگنت چھیتروں میں فتح حاصل کی تھی اور ان کی فوج تیزی سے اذربائیجان کی سرزمین کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر اذربائیجان میں ایک دن جب مسلمانوں کی فوج نماز ادا کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تو نماز کے بعد ایک بھیاوہ بحث نے جنم لیا۔ اس میں مسلمان ایک دوسرے کے قرآن پڑھنے کے طریقے کو غلط بتانے لگے اور کیول اپنے اپنے لہجے کو اصلی کلام الہی کا حقدار ماننے لگے۔ آخر کار یہ وواد اتنا بڑھا کہ ایسا لگنے لگا جیسے مسلمان پہلی بار تلواروں سے ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن اس فوج میں ایک بہت بڑے صحابی بھی موجود تھے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہوں نے مسلمانوں کو اس طرح جھگڑتے دیکھا تو انہیں گہرا ڈر ستایا کہ کہیں یہ جنگ مسلمانوں کو فرقوں میں نہ بانٹ دے۔ اس لیے انہوں نے اپنی فوج چھوڑ دی اور بہت تیزی سے مدینہ کی طرف کا رخ کیا تاکہ خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جلدی پہنچ سکے۔ مدینہ پہنچتے ہی سیدھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گئے اور فرمایا، یا امیر المومنین، اس سے پہلے کہ مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح الگ الگ سموہوں میں بٹ جائیں، آپ اس نیک امت کو ٹوٹنے سے بچا لیجئے۔ مگر یہ پہلا موقع نہیں تھا جب آسمانی کتابوں پر وواد ہوا تھا، اس سے پہلے بھی ایسی گھٹنائیں گھٹ چکی تھیں۔ دنیا میں 4 بڑی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، توریت، زبور اور انجیل اور قرآن شریف۔ پہلی کتاب توریت تھی جو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی پوری فوج کو سمندر کی گہرائی میں ڈبو دیا تھا اور بنی اسرائیل کو لے کر دابد کے ریگستانوں میں پھرتے رہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی۔ جیسے ہی توریت نازل ہوئی انہوں نے فوراً فرمان دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اس پاک کتاب کے لیے بڑا صندوق یعنی تابوت بنایا جائے۔ اس پاک تابوت میں توریت کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی مبارک چیزیں رکھی گئیں، جیسے کہ ہارون علیہ السلام کی چھڑی، 10 حکم نامے اور منوسلبہ کا ایک برتن۔ یہ ایک پاک تابوت بنی اسرائیل کے لیے اتنا مبارک تھا کہ وہ اس کی حفاظت اپنی جان سے بھی بڑھ کر کیا کرتے تھے، اور آخرکار فلسطین کو فتح کرنے کے بعد بنی اسرائیل نے یہ پاک تابوت اپنے سب سے بڑے مقام
टेम्पल में स्थापित कर दिया। ये 300 साल तक ये पाक ताबूत वहीं सुरक्षित रहा, लेकिन फिर 300 साल के बाद बनी इसराइल के फ़लस्तीन पर एक बहुत बड़ी कौम ने हमला कर दिया, जिनका सबसे बड़ा वॉरियर था जालूद बिन अमाल, और उसकी फौज बनी इसराइल को बहुत तेजी से मार रही थी। फ़लस्तीन तेजी से बनी इसराइल के हाथ से निकलने लगा और हालात इतने गमगीन हो गए कि बनी इसराइल के उलमा ने यह हुक्म दिया कि अब से हर जंग में यह पाक ताबूत फौज के सामने रखा जाएगा ताकि इसकी बरकत से विजय हासिल की जा सके। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुराद कुछ और। जालूद की फौज ने पहला हमला इसी पाक ताबूत पर किया और मूसा अलैहिस्सलाम के इस पाक ताबूत को जबरन छीन कर अपने साथ ले गई। उस पाक ताबूत के अंदर आज तक दुनिया की पहली असली तौरेत भी मौजूद थी। फिर बनी इसराइल का एक बड़ा बादशाह हुआ, दाऊद अलैहिस्सलाम, जिन्होंने जालूद और उसकी फौज पर चढ़ाई की, उन्हें नष्ट किया और पाक ताबूत को उसकी असली जगह पर पुनः स्थापित किया। मगर यहाँ एक बड़ा गमगीन मसला खड़ा हो गया। जब उस पाक ताबूत को खोला गया तो उसके अंदर मूसा अलैहिस्सलाम की तौरेत नहीं थी। मतलब पहली बार पूरी दुनिया से ओरिजिनल तौरेत गायब हो चुकी थी। इसलिए अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम पर दूसरी आसमानी किताब जबूर नाजिल फरमाई, जिसके बाद आने वाले अंबिया ने तौरेत को फिर से लिखा और दोनों को एक साथ सुरक्षित रखा। मगर 400 साल के बाद फिर से फ़लस्तीन पर हमला हुआ। बेबीलोन के बादशाह बख्तनस्र ने इतना भीषण हमला किया कि लाखों यहूदियों की हत्या कर दी, यहूदियों के टेम्पल को ध्वस्त कर दिया और बख्तनस्र ने अपनी फौज को फरमान दिया कि जाओ दुनिया की हर तौरेत को जलाकर खाक कर दो। और इसी तरह फिर तौरेत और जबूर दोनों पूरी तरह दुनिया से नष्ट हो गईं। इसके बाद अगले 100 साल तक दुनिया में एक भी तौरेत या जबूर मौजूद नहीं रही। फिर 100 साल के बाद एक यहूदी ने दोबारा तौरेत को लिखने की कोशिश की, लेकिन कुछ समय के बाद फिर एक बादशाह ने हमला किया और तीसरी बार दुनिया की सारी तौरेत को आग के हवाले कर दिया। उसके बाद यहूदियों ने बैठकर दोबारा तौरेत को लिखा। आज जिस तौरेत को लोग जानते हैं द हिब्रू बाइबल, वह मूसा अलैहिस्सलाम की ओरिजिनल किताब नहीं है, बल्कि कई बार गायब होने और फिर से लिखी गई किताब का नतीजा है। इसलिए आज भी कोई यहूदी इस किताब को मूसा अलैहिस्सलाम की असली तौरेत नहीं मानता। अब तौरेत को के बार बार गायब और जलाए जाने की वजह से तौरेत इतना बिगड़ चुकी थी कि उसकी असली पहचान ही खत्म हो गई। अब दुनिया में अल्लाह ताला की कोई भी आसमानी किताब अपनी असल शक्ल में मौजूद नहीं थी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बेहद अजीम पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम पर अपनी तीसरी आसमानी किताब नाजिल फरमाई, जिसका नाम रखा गया इंजील। मगर यह इंजील भी कुरान की तरह पहले दिनों में एक किताब की शक्ल में नहीं लिखा गया था। और जब ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से विदा हुए तो उनके फॉलोअर्स जवानी एक दूसरे को इंजील पढ़ने और सिखाने लगे। आखिर ईसा अलैहिस्सलाम के 100 साल बाद एक शख्स ने दुनिया की पहली बाइबल लिखी, उसे सही इंजील बतलाने लगा। मगर इस शख्स की लिखी हुई पहली इंजील दुनिया के क्रिश्चियन समुदाय ने रिजेक्ट कर दी और इसी तरह बिल्कुल तौरेत और जबूर की तरह इंजील में भी उलझने शुरू हो गईं, जिसके बाद हर तरफ से लोग अपनी मर्जी से इंजील लिखने लगे। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल बाद ऐसा वक्त भी आया कि दुनिया में हजारों फर्क इंजीलें मौजूद थीं। इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल के बाद स्कॉलर्स की एक बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने अपनी मर्जी से इन हजारों इंजीलों में से सिर्फ एक ही इंजील को चुना और बाकी सब को रिजेक्ट कर दिया। इसलिए आज के ज़माने की इंजील बाइबल को ईसा अलैहिस्सलाम की सही इंजील नहीं कहा जा सकता, बल्कि इवन क्रिश्चियन भी इसे सही इंजील नहीं मानते। तो अब तौरेत, जबूर और इंजील तीनों ही आसमानी किताबें जब दुनिया से गायब हो चुकी थीं तो अल्लाह ताला ने आखिरी आसमानी किताब नाजिल फरमाई, कुरान। मगर बिल्कुल तौरेत, जबूर, इंजील की तरह जब मुसलमान हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में कुरान पर भी बहस करने लगे, उसी वक्त हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुँचे और फरमाया, या अमीरुल मोमिनीन, इससे पहले कि मुसलमान भी बिल्कुल यहूदियों और क्रिश्चियन की तरह अल्लाह की किताब पर इख्तिलाफ में पड़ जाएं, आप इस नेक उम्मत को बता दीजिए। मगर खलीफा उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को इस मसले का पहले से ही पता था।
क्योंकि इससे कुछ ही दिन पहले मदीना में दो बच्चे एक दूसरे को कुरान पढ़ा रहे थे। इन दोनों बच्चों का कुरान एक ही था, लेकिन लहजा एक दूसरे से डिफरेंट था, जिसकी वजह से दोनों बच्चे आपस में लड़ने लगे। जब उनके टीचर्स को यह बात पता चली तो टीचर्स भी कुरान के लहजे पर बहस करने लगे। धीरे धीरे ये लड़ाई इतनी फैल गई कि मामला सीधे खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंच गया। अब मदीना से लेकर खिलाफत के बॉर्डर्स तक मुसलमान कुरान के लहजों पर बहस करने लगे। तब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला लिया और मस्जिद नबी में सारे बड़े सहाबा को जमा किया। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खड़े होकर फरमाया, अब वक्त आ चुका है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को कुरान के एक ही लहजे में यूनाइटेड किया जाए। कुछ सहाबा इस फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन ज़्यादातर सहाबा ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस नेक फैसले का समर्थन किया। सबसे बड़े सहाबी में से एक थे खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक लहजे का कुरान तैयार करने के लिए 8 लोगों की कमेटी बनाई। इस कमेटी का हेड नियुक्त किया गया जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्योंकि जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोई आम सहाबी नहीं थे, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से कुरान की आयत लिखा करते थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में भी जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहली बार कुरान को किताब की शक्ल में लिखवाया था। यह दुनिया का पहला कुरान था जो सबसे पहले हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास था, फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसी कुरान को दोबारा मंगवाया और जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि इसी कुरान को देख कर एक ही लहजे में कुरान लिखो। यह लहजा कुरैश का लहजा होना चाहिए, क्योंकि कुरान असल में इसी लहजे में नाजिल हुआ था। जब कुरान एक ही लहजे में कंप्लीट कर लिया गया तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक हुक्म जारी किया कि सभी मुसलमान जिनके पास कुरान के हिस्से हों, चाहे वो चमड़े, पत्थर या पत्तों पर लिखे हों, वे सब इस कुरान को खिलाफत के हवाले कर दें। जब कुरान के लगभग सारे नुस्खे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जमा हो गए तो उन्होंने हुक्म फरमाया कि अब इन सब को आग लगा दी जाए। और जैसे ही आग लगाई गई उसके बाद अब दुनिया में सिर्फ एक ही कुरान बाकी रह गया, वह कुरैश के लहजे में लिखा गया कुरान। फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसी कुरान की 7 कॉपीज बनाई और हर बड़े शहर की तरफ भेज दिया। पूरी दुनिया में ऐलान किया गया कि आज के बाद मुसलमानों का सिर्फ एक यही कुरान होगा। आज भी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने का वही कुरान दुनिया के हिस्सों में उज़्बेकिस्तान, इस्तांबुल, दमिश्क, बकिंगम में सुरक्षित रखा गया है। डॉक्यूमेंट्स अब भी यूनिवर्सिटीज़ लाइब्रेरी में सुरक्षित हैं। इस तरह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम के सबसे पाक कलाम इलाही को तौरेत और इंजील की तरह बिगड़ने से बचाया। अब दुनिया में कोई भी शख्स कुरान की ऑथेंटिसिटी पर सवाल नहीं उठा सकता। फिलहाल हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक कुरान पर यूनाइट तो कर दिया, मगर मुसलमानों की खिलाफत जो पहले बहुत तेज़ी से हर तरफ फैल रही थी, अब पूरी तरह से रुक गई थी और रोमन एम्पायर की फ़ौज मुसलमानों को आगे बढ़ने का एक भी मौका नहीं दे रही। तो दोस्तों, ये थी हमारी दुनिया में आई हुई अल्लाह की किताबों के ऊपर बनाई गई वीडियो, जिनमें से कौन सी आज तक मौजूद है जो अपनी उसी शक्ल में है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमाई थी, और कौन सी किताबें अपनी शक्लों को खो चुकी हैं। इस उम्मीद करते हैं हमारी इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी हासिल हुई होगी, और अगर आपको पूरी जानकारी हासिल हुई है तो हमारी इस वीडियो को अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी अपनी किताब की पूरी जानकारी हासिल हो। क्योंकि अगर हम अपना इतिहास जानेंगे नहीं तो खुद को पहचानेंगे कैसे। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।